सुना क्या क्या बोला मैंने? Did you hear me, kids? So what Tomorrow, about morphology and cockroach anatomy? yeah, it is okay that cockroach is a small topic. We can do that someday. And the morphology I'll start then in the next class. You want that only, no? Plants, morphology in plants you're talking, or cockroach? There isn't it part of the chapter that structural organization in Yeah, animals? it is. Yeah, I know it is there, but it is completely a different topic. There is no connection with this. But if you want to learn, I can teach that, and then we can start with a new chapter. Choice is yours. Tell me what to do. I can finish that in 2 or 3 maximum lectures. Not much time it will take. So, you want to learn cockroach then? Tell me. No, sir, Monday. anything. Okay, then we'll finish that cockroach and then we can proceed with the new chapter. Which new chapter you people want? Because Upmanyu said morphology he wants. What about you people? Any wish from your side? Yes, kids. Nothing? Fine then. Let's begin. So we'll start with last part of this animal tissue. It's about nervous tissue is remaining, right? We did muscles yesterday. I hope you all saw the videos. Those who were absent. Yes, Urvashi, you gone through that recorded lecture? Yes, children, tell me. Say something. Let's start with this. Nervous tissues. Comfortable? Everyone, can you see the screen I have shared? Yes, children, tell me. But you give the test tomorrow. Yes, sir. कल आप लोग टेस्ट दे दो ये वाला पार्ट का. This topics test. कॉकरोच आई टेक सम अदर डे टेस्ट के लिए. पढ़ाना है तो पढ़ा सकता हूँ मैं. चलो खत्म कर देते हैं इसको. Nervous tissues, when we say, you remember there are only 2 tissues which have got the ability to show conduction and excitability. So there are only 2 tissues with this property. Which property? Excitability and conductivity. Are you listening, bachcho? When you say these 2 properties, then there are only 2 tissues which have got this property, and those 2 tissues are your nervous tissue and muscular tissue. Remember this. Nervous and muscular tissues have this property or ability. Now, when it comes to nervous tissues, already you have heard something that nervous tissues include 2 types of cells, children. There are 2 types of cells which belong to nervous tissues, and those 2 types of cells are, what are those? Have you heard that, kids? It includes neurons. What it includes? It includes neurons and glial cells. See this, children. Whenever you say nervous tissues, you should remember that it includes 2 types of tissues or 2 types of cells, not tissues as such. One is called as neurons and the other one is called as, what do you call it as? Glial cells, or you also can say neuroglial cells. Now let us talk about the difference between them first, then we can proceed. So when it comes to difference between neurons and glial cells, can you people tell? Anybody got any idea about this difference?
Yes, children, anybody knows what is the difference between neurons and glial cells? बच्चों, पता है क्या आप लोगों को? Say yes or no. नहीं पता है तो नहीं बोलने यार, उसमें क्या है? Nothing wrong with that. So neurons cannot divide. याद रखो ये. Cannot divide. Remember this, cannot multiply. All right. Whereas when you talk about glial cells, they can divide. सुन रहे हो बच्चों आप लोग? Neurons cannot divide. Yes, sir. Glial cells can divide. Then neurons carry nerve impulses. These are meant to carry impulses. Impulse means what? You already know that. Sensation. So neurons can carry sensation, but these glial cells cannot. Are you getting me? समझ में आ रहा है difference बच्चों? These Yes, sir. Yes, cannot sir. carry sensation or cannot carry impulses. Another difference is that these neurons, they may be about, they are the longest cells. Already हम लोगों ने ये पढ़ा है. हमारे बॉडी का सबसे लंबा सेल कौन सा होता है? न्यूरॉन्स होता है, which can be 1 meter long or more than 1 meter long also. Isn't it? It starts from your head and ends in your toe. तो सबसे लंबे सेल्स होते हैं. इनका काम क्या होता है? ये ग्लाइल सेल्स का. So these glial cells help basically in support. और ये आजू बाजू में होते हैं न्यूरॉन्स के, तो ये सपोर्ट में मदद करते हैं, ये प्रोटेक्शन में मदद करते हैं, ये न्यूट्रिशन में मदद करते हैं. डिड यू ऑल गेट दिस? प्लीज टेल मी, क्या क्या काम करते हैं ये? सपोर्ट, प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन. इज दिस क्लियर एवरीवन? इतना समझ में आया क्या? जब भी हम लोग Yes, sir. नर्वस टिश्यूज बोलेंगे तो उसमें 2 टाइप के सेल्स आपको याद रखने हैं, न्यूरॉन्स एंड ग्लाइल सेल्स. इसको हम लोग न्यूरोग्लाइल सेल्स भी बोल सकते हैं. तो अब जब हम लोग ये न्यूरोग्लाइल सेल्स की बात करेंगे तो बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं, जैसे एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल्स, माइक्रोग्लाइल सेल्स, श्वान सेल्स, सैटेलाइट सेल्स. तो चलो इसके बारे में पहले पढ़ते हैं अपन लोग, और उसके बाद में न्यूरॉन पढ़ेंगे. शैल वी? क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है बच्चों. तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट. चलो मैं इरेज कर रहा हूँ. आई होप यू हैव कॉपीड डाउन दैट. यस चिल्ड्रन, सुनो अभी. सो लेट अस स्टार्ट विथ न्यूरोग्लाइल सेल्स. व्हेन आई से दिस न्यूरोग्लाइल सेल्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या बोला मैंने बच्चों? ये इम्पल्स कैरी नहीं कर सकते, दे कैन डिवाइड एंड दे हेल्प इन. व्हाट आर द फंक्शंस आई सेड? रिपीट करो. चलो चलो बताओ जल्दी जल्दी. व्हाट आर द फंक्शंस दे परफॉर्म? यस चिल्ड्रन, टेल मी, क्या काम करते ये? शुभंकर बोलो. You heard, no? Shubhankar, are you there? Sir, they can divide. They cannot carry impulses. And functions? Function क्या बोला? अरे प्रोटेक्ट करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं. Help in support, nutrition, देते हैं. and protection. Yes, yes, good job. Now let us proceed. आप लोगों ने कैंसर ट्यूमर के बारे में सुना है ना? Have you heard the term कैंसर ट्यूमर? मीन ब्रेन कैंसर जब हम लोग बोलते हैं ये, तो ये ब्रेन कैंसर एक्चुअली न्यूरॉन्स की वजह से नहीं होता है. ब्रेन कैंसर इज एक्चुअली कैंसर ऑफ दिस ग्लाइल सेल्स ओनली, क्योंकि यही सेल्स होते हैं जो डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं. और ट्यूमर इज नथिंग बट व्हाट? ट्यूमर इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ, एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ आवर ओन बॉडी सेल्स. इजंट इट किड्स? तो ये ब्रेन ट्यूमर बेसिकली इसी सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है. तो उस कैंसर को एक नाम भी है, आप लोगों को पता होगा शायद से. डू यू नो व्हाट इज दैट ब्रेन ट्यूमर कॉल्ड एज? यस बच्चों, उसको बोलते हैं ग्लायोमास.
ग्लायोमा, यही होता है वो कैंसर, ब्रेन ट्यूमर। तो नाम में ही ग्लायल सेल्स है, देखो इधर। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी, आर यू कंफर्टेबल? हाँ बच्चों बोलो तो, कम ऑन टेल मी। Yes, sir. चलो अच्छी बात है। अब हम लोग पढ़ते हैं ये वाले सेल्स, ग्लायल सेल्स, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड दे कैन बी डिवाइडेड इनटू, इनको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो टाइप्स में। दो टाइप्स मतलब डिपेंडिंग अपॉन देयर ओरिजिन, कहाँ पर प्रेजेंट होता है या किसमें, कौन से नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, on that basis we can divide them into two types: those which are originated from or which are present as a part of a central nervous system and those which are present as a part of peripheral nervous system. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास 4 टाइप के ग्लायल सेल्स होते हैं बच्चों। मैंने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भेजा उसमें देख लो, फोटोज भी अच्छे अच्छे। देखा क्या आप लोगों ने उसको ओपन करके? यस बच्चों, नहीं देखा किसी ने भी? एस्ट्रोसाइट्स पहला सेल्स होता है इसमें। दूसरा होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट, Oligo ओलिगोडेंड्रोसाइट dendrocytes. या डेंड्रॉन्स भी बोला है किसी बुक्स में। थर्ड वन होता है एपेंडाइमल सेल्स, Ependymal cells. एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है बच्चों। और आखिरी टाइप जो सीएनएस में होते Neurosecretory हैं cells. ना, उसको बोलेंगे हम लोग अभी माइक्रोग्लियल सेल्स, माइक्रोग्लायल सेल्स। तो ये 4 सीएनएस में होते हैं। 2 और हैं जो पीएनएस का पार्ट होता है, इट इज काउंटेड इन द पीएनएस। वन ऑलरेडी यू नो आउट ऑफ दिस, ये वाला सुना है क्या आप लोगों ने? श्वान सेल। Schwann cells. और एक होता है छोटा सा सेल जिसको हम लोग सैटेलाइट सेल्स बोलते हैं बच्चों। इतने सारे टाइप्स है ग्लायल सेल्स के। डिड यू सी दिस? प्लीज टेल मी, समझा क्या? नाम क्या क्या है? एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल्स, माइक्रोग्लियल सेल्स, श्वान सेल्स, सैटेलाइट सेल्स, कई सारे सेल्स है। 6 टाइप्स तो हमारे सामने यहाँ है। चलो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। आर यू रेडी? प्लीज टेल मी, क्या आप लोग तैयार हो? लेट्स स्टार्ट। सुनो अभी, पहला टाइप सेल्स का क्या नाम है इसका? जो फर्स्ट टाइप हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, इट इज अबाउट एस्ट्रोसाइट्स। तो व्हाट आर दीज एस्ट्रोसाइट्स? बच्चों इसका इमेज देख लो, आपके वो पीडीएफ में है जो मैंने आपको भेजा हुआ है। यू ऑल कैन सी देयर आल्सो। एस्ट्रोसाइट्स कैसे होते हैं? एस्ट्रोसाइट्स नाम में ही एस्ट्रो है, यू नो, स्टारफिश का साइंटिफिक नाम एस्टेरिया होता है। तो जहां एस्ट्रो आया वहां शेप आता है स्टार। डिड यू गेट दिस? These are star-shaped cells. They have many protoplasmic projections. बहुत सारे ब्रांचेस अराइज होते हैं, मेनी प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस या प्रोजेक्शंस इससे अराइज होते हैं। एंड इनका मेन फंक्शन क्या होता है? ये पकड़ के रखते हैं उन ब्लड वेसल्स को या कैपिलरीज को जो नर्वस टिश्यूज को ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई करते हैं, ब्लड सप्लाई करते हैं, यू कैन से। इनका मेन फंक्शन क्या है देखो अभी। व्हाट डू दे डू? वेयर आर दे प्रेजेंट? सो दे आर प्रेजेंट अराउंड कैपिलरीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है सब में से, याद रखना आपको। दे आर प्रेजेंट अराउंड कैपिलरीज विच सप्लाई ब्लड टू द ब्रेन। कुछ पल्ले पड़ा क्या बच्चों? बताओ मुझे, कहां पर प्रेजेंट होते हैं? जहां पर ब्लड सप्लाई होता है ब्रेन को, वहां पर। अगर हम लोग इसको डायग्राम की मदद से पढ़ेंगे तो देखो बच्चों, और इसीलिए इसका एक और मेन फंक्शन, या मतलब ये डिसाइड करते हैं कि ब्लड में से न्यूरॉन में क्या जाएगा और क्या नहीं जाएगा। दे डिसाइड इट। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि आपका ये कैपिलरी है, देखो
दिस इज द कैपिलरी। अब इस कैपिलरी में से ब्लड फ्लो कर रहा है, यही ब्लड अपने ब्रेन को जाने वाला है। तो इसी के ऊपर ये वाले आपके सेल्स प्रेजेंट होंगे विच विल लुक लाइक स्टार शेप। कैसे दिखेंगे बच्चों ये वाले सेल्स? दे विल लुक लाइक स्टार शेप। ये देखो दिख रहा है। एंड दीज आर द एक्सटेंशंस, ये उनके वो एक्सटेंशंस है जो पकड़ के रखेंगे। किसको पकड़ के रखेंगे? नर्व फाइबर्स को, न्यूरॉन्स को। एंड नॉट ओनली दे विल होल्ड, विल डिसाइड कि इस ब्लड में से ब्रेन को क्या जाएगा और क्या नहीं जाएगा। कुछ पल्ले पड़ा क्या? प्लीज टेल मी बच्चों, डिड यू ऑल गेट द, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? ये उसका न्यूक्लियस वगैरह रहेगा बाकी Yes, sir. तो इसके आजू बाजू में क्या मिलेगा अपने को? इसके आजू बाजू में रहेगा अपना न्यूरॉन्स। तो ये रहा वो न्यूरॉन। आई होप नाउ यू फॉलोड दिस। तो ये न्यूरॉन है आपका, इसको इन्होंने पकड़ के रखा है। तो एक साइड में ये हो गया, वैसे ही ये साइड में भी हो सकता है। Here also this is another neuron बच्चों। Did you get this? Please tell me. बताओ, समझ में आया ये वाला सेल्स के बारे में? क्या नाम बोला मैंने? एस्ट्रोसाइट्स। Where do you find these astrocytes? They are present on the capillaries or blood vessels. ये रहा वो blood vessel, around blood vessels which supplies blood to the neurons. तो इसमें रहेगा अपना blood. Is this clear to you all? Please tell me kids. सब लोग कंफर्टेबल हैं? समझा सबको? Come on, yes or no? Go ahead, tell me. पहला टाइप। Sir, astrocytes are present in our body. Of course, they are present. यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। और वो न्यूरॉन से ज्यादा होते हैं। You know, न्यूरॉन्स के कंपैरिजन में they are about 8 to 10 times more. न्यूरॉन तो फिर भी कम है। They are in between, around the neurons. ये सब अपने न्यूरॉन्स है ना। This is a neuron. Is this clear everyone? Please tell me. और ये है आपका एस्ट्रोसाइट, येलो कलर वाला जो मैंने बनाया स्टार शेप का। डिड यू गेट दिस? हाँ बच्चों, ठीक है, हो गया पहला सेल। अब आ जाओ दूसरे सेल पे। लेट्स टॉक अबाउट सेल नंबर 2। क्या नाम है सेल नंबर 2 का? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। क्या नाम था बताओ तो? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है कि नहीं? सो व्हेन यू से ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, तो आपको क्या याद रखना है? इसका भी अगर आप इमेज देखोगे तो ये भी ऐसा ही दिखेगा एस्ट्रोसाइट्स के जैसा ही, बट इसमें थोड़े कम प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस रहेंगे। ओके, ये भी कैसा दिखेगा बच्चों? स्टार शेप्ड ओनली, बट इट विल हैव few protoplasmic processes। बस उसी के जैसा आप डायग्राम देख सकते हो, या फिर ओपन करो वो पीडीएफ, उसमें आप लोग देख सकते हो। डू आई नीड टू ओपन एंड शो? जरूरत नहीं है ना। काम सुन लो इसका क्या होता है। फंक्शन सुन लो बच्चों इसका क्या होता है। फंक्शन है दे प्रोड्यूस माइलिन शीथ। हैव यू हर्ड दिस वर्ड माइलिन शीथ? डू यू नो बच्चों? या इसी को मेडुलरी शीथ बोलते हैं। Yes, sir, it is a covering of neuron. एग्जैक्टली तो ये सीएनएस में बनाता है, और जो पीएनएस में होता है वो श्वान सेल्स पीएनएस में बनाता है माइलिन शीथ। तो याद रखो, अगर श्वान सेल्स नहीं है तो फिर माइलिन शीथ कौन बनाएगा? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाएगा। इट विल लुक सिमिलर इन स्टार शेप। आई होप नाउ यू आर क्लियर विद दिस। आर यू क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी बच्चों। अब आ जाओ तीसरा वाला सेल, टाइप नंबर 3। क्या है बताओ मुझे, जो सीएनएस का पार्ट होता है? लिस्ट में क्या था? एपेंडाइमल सेल्स। याद आया है ना? एपेंडाइमल सेल्स।
ये आप लोग अगले चैप्टर में भी पढ़ोगे, नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो न्यूरल कंट्रोल यू विल कम अक्रॉस दिस. एपेंडाइमल सेल्स यूजुअली सीलिएटेड होते हैं, इनमें सीलिया प्रेजेंट होंगे. ओके, दे विल बी लाइक दिस, ऐसे सेल्स हैं, यहाँ पे उनको सीलिया प्रेजेंट होते हैं. एंड दीज सेल्स आर यूजुअली फाउंड इन, कहाँ पर मिलेंगे अपने को ये? दीज सेल्स आर फाउंड इन inner lining of central canal. What is this? Central canal क्या होता है बच्चों? Of spinal cord. सुना आप लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर पढ़ा है क्या? उसका कैविटी सेंटर में होता है. अगर हम लोग देखेंगे उसको तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. ये है सेंट्रल कैनाल और इसके अराउंड होता है आपका ग्रे मैटर, वाइट मैटर. आपने कुछ सुना होगा वो रिफ्लेक्स एक्शन. अनफॉर्चुनेटली आप लोगों का लास्ट ईयर ये चैप्टर ही डिलीट हुआ था बोर्ड में से. नर्वस कंट्रोल है ना बच्चों, आपको ये आइडिया नहीं होगी शायद से. ये मालूम है डायग्राम जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ किस चीज का है? दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. सुन रहे हो क्या बच्चों? ये आपका स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन है. देखो तो इसका सेंटर है ये, इसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल. और इसका वॉल जो है ना, ये बॉर्डर, यहाँ मिलेंगे अपने को एपेंडाइमल सेल्स. तो इस कैविटी में कुछ भरा हुआ रहता है. क्या भरा हुआ रहेगा इस कैविटी में बच्चों? देयर इज अ फ्लूइड विच इज फिल्ड इनसाइड दिस कैविटी, और वो फ्लूइड होगा आपका CSF. डू यू नो दिस फ्लूइड बच्चों? क्या पता है आप लोगों को ये CSF करके? मालूम है क्या बच्चों? बताओ तो. कैविटी का No, नाम sir. सेंट्रल कैनाल filled with the fluid CSF, that is cerebrospinal fluid. सुना बच्चों? बताओ मुझे. तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को उसका जो फ्लो है वो मेंटेन करता है. तो इसका काम वही होगा. कहाँ पर प्रेजेंट है? सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में. ऑल्सो इट इज प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन. आप लोगों ने हार्ट में वेंट्रिकल्स पढ़ा है, पर हमारे ब्रेन में भी वेंट्रिकल्स होते हैं. मतलब ब्रेन इज इंटरनली हॉलो. ब्रेन इज इंटरनली हॉलो, ये वाला ऐसे. तो ये अंदर से भी इसी फ्लूइड से भरा है CSF, और यही इस स्पाइनल कॉर्ड में भी फ्लूइड जाएगा. यहाँ से ये फ्लूइड भी जाएगा. समझ में आया क्या बच्चों? बताओ मुझे. टेल मी yes or no. Did you get this? सेम फ्लूइड स्पाइनल कॉर्ड में भी जाता है. Are you confident with this? Please tell me. Come on Yes, sir. children, everybody. How about other people? Confident? समझ में आया सबको? अब Yes, आ जाओ sir. अगले वाले सेल पे आ जाओ. चलो. Now what we'll talk about? अगले वाले सेल का नाम बताओ. नंबर 4. It is about microglial cells, है ना? नंबर 4. Microglial cells. So when you say microglial cells, these are smallest size and they have a feathery processes around them as a protoplasmic extension. क्या क्या फीचर्स है इनके बच्चों? स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं, दे हैव फेदरी प्रोसेसेस एज एन एक्सटेंशन. ठीक है. और इनको हम लोग एक और कॉमन नाम से बोल सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए ब्रेन मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस कहाँ सुना है आप लोगों ने? कहाँ सुना है आप लोगों ने मैक्रोफेजेस वर्ड? इनको हम लोग ब्रेन मैक्रोफेजेस बोलते हैं. बट व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रोफेजेस? क्या काम होता है इन मैक्रोफेजेस का? याद करो बच्चों, याद करो. कम ऑन कम ऑन कम ऑन, थिंक अबाउट इट. आप लोगों ने ऑलरेडी सुना है. अरे WBCs का टाइप मोनोसाइट्स, जिनका मेन फंक्शन होता है टू
swallow और eat और consume, तो ये ब्रेन के मैक्रोफेजेस है, ये याद रखना है आपको। हेल्प्स इन फैगोसाइटोसिस, किसमें मदद करते हैं? फैगोसाइटोसिस मतलब swallowing और engulfing। ठीक, अब आ जाओ लास्ट टू टाइप्स। अब ये सब CNS वाले हो गए, अब आपका PNS वाले में आ जाओ। चलो, so let us talk about PNS वाला। आर यू रेडी? तो PNS में कौन आएगा? नंबर 5। नाउ विल टॉक अबाउट, पांचवा सेल्स का नाम है आपका श्वान सेल्स। सुना है इसके बारे में कभी आप लोगों ने? श्वान सेल्स, और कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ए न्यूरोलेमोसाइट्स। न्यूरोलेमोसाइट्स। अब ये सेल्स आप लोग पढ़ोगे जब स्ट्रक्चर ऑफ एक्सॉन पढ़ोगे तो, क्योंकि ये एक्सॉन के ऊपर ही होते हैं और PNS को बिलोंग करते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस माइलिन शीथ, या मेड्यूलरी शीथ भी बोलते हैं हम लोग। माइलिन शीथ कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ए मेड्यूलरी शीथ। क्लियर है बच्चों? और ये PNS में तैयार करेगा, दिस यू कैन रिमेंबर इन PNS। आखिरी सेल्स जो ग्लायल सेल्स में आएंगे आपके, नाम है सैटेलाइट सेल्स। क्या करते ये सैटेलाइट सेल्स बच्चों? तो सैटेलाइट सेल्स दे प्रोटेक्ट गैंग्लिया। इनका फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट गैंग्लिया। अब ये गैंग्लिया क्या होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे जब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब। किसी को कोई दिक्कत इसके बारे में? जितना बताया बताओ मुझे बच्चों। एनीबडी गॉट एनी डाउट विद दिस? टेल मी, ऑल आर कंफर्टेबल? बोलो बच्चों, is everyone comfortable? Yes, sir. I'm just copying it down. Yeah, sure. I'm not erasing. Do I need to zoom in? You're okay with this, no? Yes, sir. Zoom in करने की जरूरत है क्या? No, sir. चलो अच्छी बात। तो ये था पहला टाइप सेल्स का बच्चों। क्या था पहला टाइप सेल्स का? क्या टाइप था पहला बच्चों? ग्लायल सेल्स। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी बताओ मुझे, दूसरा सेल हम लोग पढ़ेंगे जो नर्वस सिस्टम को बिलोंग करता है, नाम है न्यूरॉन्स। है ना बच्चों? न्यूरॉन्स, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। एम आई राइट? जो डिवाइड नहीं हो सकते हैं, इम्पल्स कैरी कर सकते हैं, लॉन्गेस्ट सेल्स हमारे बॉडी के हैं, इजंट इट? अब ये इरेज करूं मैं? शैल आई इरेज दिस? प्लीज टेल मी। कर दिया। चलो अब आ जाओ आगे बच्चों। नाउ विल टॉक अबाउट, किस चीज के बारे में? न्यूरॉन के बारे में बोलते हैं हम लोग। न्यूरॉन आप लोगों ने ऑलरेडी सुना है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। बराबर? देयर आर billions of neurons in our nervous system which can be divided into, अभी अलग अलग टाइप्स है, उसका क्लासिफिकेशन है, हम लोग पढ़ेंगे। बट जब इसका स्ट्रक्चर की बात आती है बच्चों, तो उसमें क्या होता है आप लोगों को पता है? when you say structure of a neuron, it has got two main parts। बताओ तो क्या क्या दो पार्ट्स हैं? पहला पार्ट होगा आपका साइटोन और सेल बॉडी, जो यूजुअली ग्रे कलर का होता है। दूसरा पार्ट होगा इसका एक्सॉन, जो यूजुअली वाइट कलर का होता है। तो ये वाइट भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है। सो साइटोन एंड एक्सॉन, या सेल बॉडी एंड एक्सॉन, ये दो पार्ट्स है इसके। नर्व, आप लोगों ने कई सारे इमेजेस इसके देखे होंगे, है ना बच्चों? यू मस्ट बी नोइंग अबाउट। तो जब साइटोन की बात आती है, ये वाला है स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर, दिस यू कॉल एज ए cyton, which contains a nucleus surrounded by cytoplasm, and inside the cytoplasm it has got some granules
किस चीज के ग्रैन्यूल्स होते हैं इसके अंदर बच्चों? देर आर नीजल्स ग्रैन्यूल्स। आप लोगों ने सुना ये सेल ऑर्गेनेल है एक्चुअली। इट हैज गॉट नीजल्स ग्रैन्यूल्स जो नरिशमेंट का काम करते हैं। नीजल्स ग्रैन्यूल्स विच आर नथिंग बट, ये शायद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक बार कंफर्म कर लेना। ओके, विच गिव्स नरिशमेंट, सपोर्ट ऑल्सो देते हैं इसको। नाउ दिस साइटोन गिव्स आउट सम ब्रांचेस, और इन ब्रांचेस को ही हम लोग अभी क्या बोलते हैं बच्चों? ये वाले जो ब्रांचेस यहाँ से अराइज हो रहे हैं, व्हाट डू यू कॉल दीज ब्रांचेस एज? बोलो तो। सिंगुलर नंबर डेंड्रॉन, प्लूरल नंबर डेंड्राइट्स। एम आई राइट? सिंगुलर नंबर डेंड्रॉन, प्लूरल नंबर डेंड्राइट्स। तो अब ये जो डेंड्रॉन्स है या फिर ये डेंड्राइट्स है, इनका मेन काम क्या होता है? दीज रिसीव स्टिमुलस। ये वो स्टिमुलस रिसीव करते हैं जब आपको कोई टच करता है या किसी गर्म चीज को हमारा बॉडी पार्ट टच होता है, तो ये वो स्टिमुलस रिसीव करते हैं। सो दीज आर मेंट टू रिसीव स्टिमुलस। डिड यू गेट मी? प्लीज टेल मी। हाँ बच्चों, क्या करते हैं ये? दे रिसीव योर स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग। ये कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, कोल्ड, पेन, एनीथिंग इट कैन बी। बराबर है? तो डिपेंडिंग अपॉन how many such processes or branches are there, we can have different types of neurons. अब न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन सुन लो। देयर आर डिफरेंट बेसिस। न्यूरॉन के क्लासिफिकेशन के अलग अलग बेसिस हैं। उसमें से ये पहला क्लासिफिकेशन सुनो, बेस्ड ऑन हाउ मेनी, बेस्ड ऑन डेंड्राइट्स, कितने डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, ऑन दैट बेसिस वी हैव डिफरेंट टाइप। जैसे कि सबसे पहला टाइप होता है इसमें एपोलर न्यूरॉन। एपोलर का मतलब क्या होगा बच्चों? जिसमें कोई भी डेंड्रॉन नहीं है, देयर इज नो डेंड्रॉन। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। बोलो। जिसमें सिर्फ वो स्टार शेप होगा बट देयर विल बी नो मोर ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम इट। ऐसे डेंड्रॉन हम लोगों में नहीं मिलते हैं। ए पोलर वाले या नॉन पोलर भी बोलते हैं इसको, हम लोगों में मतलब एडल्ट्स में नहीं मिलते, एम्ब्रियो में मिल सकते हैं हमारे, और इनवर्टेब्रेट्स में मिलेगा ये। एग्जाम्पल, इनवर्टेब्रेट्स में और एम्ब्रियो ऑफ वर्टिब्रेट्स में। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। एम्ब्रियो ऑफ वर्टिब्रेट्स समझा पहला टाइप बच्चों? डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी ब्रांचेस आर प्रेजेंट। Are you confident with this? Please tell me. बोलो, बोलते रहो। अब दूसरा टाइप सुनो। अब जिसमें एक ही डेंड्रॉन अराइज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज यूनिपोलर। पर इसमें एक और सब टाइप भी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सुडो यूनिपोलर। सुडो यूनिपोलर। अब ये टाइप में क्या होगा, कैसा होगा कि यहां से आपका साइटोन अराइज हो गया, साइटोन से एक ऐसा लंबा एक्सटेंशन आ गया, मतलब ये डेंड्रॉन बन गया। और ये डेंड्रॉन अभी ऐसे दिखता है जैसे कि दो प्रोसेसेस में बटा है। तो ये एक साइड में गया इसका एक्सॉन, दिस इज द एक्सॉन बच्चों। और ये है उसका एक ही एक्सटेंशन स्टार शेप वाला। तो दिस इज कॉल्ड एज सुडो यूनिपोलर बच्चों। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देयर इज ओनली वन एक्सॉन बट इट लुक्स लाइक देयर आर टू एक्सॉन, तो इसको हम लोग बोलते हैं सुडो यूनिपोलर। कहाँ मिलेगा ये याद रखना है आपको। दिस इज फाउंड इन द डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ, it is present in the dorsal root ganglion of spinal cord. Dorsal root ganglion of spinal cord. अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम पढ़ा था ना बच्चों, उसमें जो
ऐसे बटरफ्लाई शेप याद करो, वापस आ जाओ इधर, ये वाला डायग्राम, दिस वाज योर स्पाइनल कॉर्ड विच, ये सेंट्रल कैनल है उसका, और यहां से हमने कुछ बटरफ्लाई शेप बनाया था, याद आया बच्चों? इसका ग्रे कलर होता है, ग्रे मैटर, बहुत सारे साइटोन होते हैं, और ये जो ब्रांच है ये वाले रूट साइड में वेंट्रल पोलर न्यूरॉन बच्चों, इसमें भी एक ऐसी जगह है जिसको बोलते हैं गैंग्लियन, दिस प्लेस इज कॉल्ड गैंग्लियन, वी लर्न अगेन अबाउट इट, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसका। और ये बाहर जो है ना, टू कलर्स, अपने ये स्पाइनल कॉर्ड में दो कलर्स होते हैं, ग्रे और व्हाइट, इसको हम लोग ग्रे मैटर व्हाइट मैटर भी बोलते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ में आया क्या इतना? बताओ बच्चों मुझे, डिड यू अंडरस्टैंड दिस मच? प्लीज टेल। Yes, sir. बेटर, चलो अब आ जाओ आगे, तीसरा टाइप सुनो, ये हो गया सेकेंड टाइप जिसका नाम है सुडो यूनिपोलर। अब आ जाओ थर्ड टाइप में, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी डेंड्रॉन्स आर प्रेजेंट वी आर स्टडीइंग दिस। तीसरे टाइप को हम लोग बोलते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स। बाइपोलर कब बोलेंगे? बाय मतलब दो, अब इसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होगा, बाइपोलर हैज गॉट वन एक्सॉन एंड वन डेंड्रॉन, वन डेंड्रॉन, तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइपोलर, एंड ये अपने रेटिना में प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्पल, और इट इज लोकेटेड इन दी रेटिना ऑफ आईज। आखिरी टाइप जो अब हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, मल्टीपोलर। मल्टीपोलर मतलब जिसमें कई सारे एक्सटेंशंस होते हैं, कई सारे डेंड्राइट्स होते हैं, तो ये तो कॉमन टाइप है अपना वाला। ये जो डायग्राम ड्रॉ किया है ये है बच्चों आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन। इतना समझा? प्लीज टेल मी, सो फार एवरीबडी कॉन्फिडेंट? तो जो स्टिम्युलस होता है बच्चों, सेंसेशन होता है, वो हमेशा इस साइटोन से एक्सॉन की तरफ जाएगा। अब ये जो एक्सटेंशन है ये हो गया आपका एक्सॉन। डू यू नो दिस बच्चों? ये आपको पता है? दिस इज योर एक्सॉन। एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी बच्चों, बोलो। तो ये जो सेंसेशन होता है वो हमेशा साइटोन से एक्सॉन की तरफ मूव करेगा, नेवर फ्रॉम एक्सॉन टू साइटोन। तो एक्सॉन क्या है? ये एक एक्सटेंशन ही है, सिलिंड्रिकल पार्ट है ये एक्सॉन। नाउ द प्लेस फ्रॉम वेयर दिस एक्सॉन अराइजेस, वो जगह जहां से ये एक्सॉन अराइज हुआ है बच्चों, उस जगह को हम लोग बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। इट्स लाइक अ जंक्शन फ्रॉम वेयर योर एक्सॉन अराइजेस, ये वाली जगह, कैन यू से दिस? इस चीज का नाम है एक्सॉन हिलॉक। नहीं सुना था ना पहले आप लोगों ने? डिड यू हियर दिस बिफोर? हाँ बच्चों, या ट्रिगर जोन भी बोला जाता है इसको कभी कभी, ट्रिगर जोन।